आज हम पढ़िया टुडे वी विल रीड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया क्लास 10 सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट टॉपिक बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा। Bakery, cookery, now you know, all of you know, all like breads, love breads and all the bakery items. This baker, we love all the students love breads, pizzas, cakes, loaves of big loaves of breads. These are baked, so we like it. Just I am reading, listen, and understand line by line. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. Village baker has also still now an important place in the society. He occupies an important place in the society still now. Baker, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Who made those bakers? Portuguese days. Thinking of fondly of the past Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Their loaves of bread are famous, big breads. We all like breads. Now sandwiches are made, loaves of breads. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. Those who are eating the loaves, they might have vanished, but those who are eating the breads, they are also still now present. मतलब जो ब्रेड खाने वाले वो चले गए होंगे, लेकिन जो बनाने वाले अभी तक है. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. अभी तक बेकरी कोई बहुत दुकान खुल गए, बहुत जगह में बेकिंग होता है. These age old time tested furnaces still exist. टाइम टेस्टेड फर्नेस में जो बनता है आग में, वो बहुत स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है. उसका टेस्ट कहाँ नहीं मिलता है. Those age old time tested furnaces still exist. The fire of the furnace has not yet been extinguished. अभी तक उसमें आग जल रहा है चूल्हा में. The third and jingle of the traditional bakers bamboo. वो जो आता है, जो ब्रेड लेकर बाम्बू बजाता है, heralding the arrival of the morning. सवेरे आता है, वो 2 बार आता है, सवेरे आता है, शाम भी आता है. Can still be heard in the some places. गाँव में अभी तक हम सुन सकते हैं. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. जो बेकरी का जो बिजनेस था, वो उनका बाप मर गया होगा, फादर्स, उनका बच्चे अभी चला रहे. These bakers are even today known as पेडर इन गोवा. उनको बोलते हैं पेडर. ये आएगा एग्जाम क्वेश्चन में. यू गेट दिस क्वेश्चन. व्हाट द बेकर्स आर टोल्ड टुडे, दैट मीन्स पेडर्स. PADER. इन गोवा में इसको पेडर बोलते हैं. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. जब हम बच्चे थे गोवा में, वो बेकर हमारा फ्रेंड हुआ करता था. ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे. 2 बार आता था. वंस व्हेन ही set out in the morning on his selling round, and then again when he returned from emptying his huge basket. सवेरे आता था जब बेचने लगे, फुल था बास्केट उसका, और शाम को जब खत्म हो जाता था रिटर्न करता था. The jingling thought of the bamboo woke us from sleep and we ran to meet greet him. उसका जो साउंड आता था बाम्बू से, उसके लिए हम दौड़ के चले जाते थे मिलने. Why was it so? Was it for the love of loaf? ब्रेड खाने के लिए? Not at all. The loaves were brought by some Paskin or Bestin, the maid servant of the house. वो कौन लाता था? घर का जो नौकरानी था वो लाती थी. What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. उसको हम चूज करते थे केयरफुली. Sometimes it was sweet bread of special make. कभी कभी स्वीट ब्रेड होता है, मीठा मीठा ब्रेड होता है. आजकल बहुत टाइप का ब्रेड मिलता है बेकरी में, स्वीट कलरफुल ब्रेड्स. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. बाम्बू का जो बना था उसका साउंड आता था झंग झंग करके. One hand supported the basket on his hand and other hand the bamboo on the ground. एक हाथ में पकड़ता था, दूसरा हाथ में ग्राउंड में था. He would greet the lady of the house with good morning. घर में जो मैडम होते थे लेडीज़ को, उनको गुड मॉर्निंग बोलता था. And then place the basket on his vertical bamboo. प्लेस करता था बाम्बू में, तुमने तो देखे होंगे ब्रेड. But we would not give up. We would climb a bench or parapet and peep into the basket somehow. हम लोग बच्चे थे, वो पैरापेट में चढ़ के देख रहे थे. I can still recall the typical fragrance of these leaves. जो साउंड खुशबू आता था उस ब्रेड्स का, वो खुशबू उनको बहुत अच्छा लगता था. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन. लोव्स बढ़ाने के लिए, छोटे से बैंगल्स छोटे बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly.
जब याद आता था, मिल जाता था ब्रेड्स, उसके बाद जल्दी जल्दी मुँह धोते थे, ब्रश भी जल्दी जल्दी कर देते थे। हाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, मैंगो लीफ पकड़ के टूथब्रश करते थे। नेवर वाज नेसेसरी एट ऑल, टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, क्यों टूथब्रश क्यों करना चाहिए, कभी कभी बिना टूथब्रश में खा सकते, टाइगर कभी टूथब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, हॉट टी उसको अच्छा साफ कर देगा दांत को। उस टाइम में क्या क्या होता था ब्रेड में। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, स्वीट ब्रेड होता था, मीठा ब्रेड बोल बोलते थे, उसके बिना मैरिज गिफ्ट्स कंप्लीट नहीं होता था, जब शादी में गिफ्ट दिया जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और फीस्ट लूजेस हिज चार्म विदाउट ब्रेड, कोई पार्टी फीस्ट होता था उनका, ब्रेड के बिना उसको वो बेकार लगता था, उनका मेन आइटम था ब्रेड। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो सम इम्पोर्टेंट बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, हाउ बेकर इसलिए गाँव में इम्पोर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, जब डॉटर का एंगेजमेंट होता था, लड़कियों का शादी होने के टाइम में एंगेजमेंट में वो उनका सैंडविच बनता था। आजकल रास्ते में सैंडविच मिलता है, दुकान में खाते थे सैंडविच, बहुत टेस्टी होता है। केक एंड बोलिन हास आर ए मस्ट फॉर एक्समास, आज लिया अदर फेस्टिवल, जितना फेस्टिवल होता है एक्समास में केक्स तो हम लोग बहुत तरीके का केक खाते हो। और बोलिन हास ये भी एक इम्पोर्टेंट आइटम था एक्समास में और दूसरा फेस्टिवल में। दस दी प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नास इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसलिए बेकर्स जो फर्नास था उसका चूल्हा वो बहुत इम्पोर्टेंट था। केक बनता था, ब्रेड बनता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई, कबाई बोलते हैं उसका ड्रेस को, लंबा ड्रेस। इट वॉज ए सिग्निफिकेंट लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, लंबा फ्रॉक होता था पूरा नीचे। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, पैंट से बड़ा होता था वो फुल लेंथ से छोटा होता था बच्चे में। When today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder, अभी जो पहनता था जो बिलो द नीज है उसको पेडर बोलते हैं। बेकर यूजुअली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ का एंड में वो बिल कलेक्ट पैसा लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, कहाँ लिखता था अकाउंट, दीवार में पेंसिल में लिखता था। बेकिंग वॉज इंडीड एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, आजकल भी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। बेकिंग होता है, केक बनता है, ब्रेड बनता है, सैंडविच खाते हैं, बहुत प्रोफेशन है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, वो कभी भूखा नहीं रहते थे। ही एंड हिज फैमिली सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, बेकर का फैमिली, उनका जो नौकर चाकर सब लोग प्रॉस्परस, अमीर थे, खुश थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी इन टू दिस, जो मोटा उसका बनते थे उससे पता चलता है वो खाने पी के बड़े हुए। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू बेकर, अभी भी जब जैकफ्रूट जैसा दिखता है उसको बोलते हैं बेकर। वो बहुत अच्छा है कैसे बेकिंग ब्रेड का, इसी बारे में बताया है। ठीक है, अभी इसको हम पढ़ लिए, फिर से तुम दोबारा पढ़ोगे केयरफुल, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेसन में। कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन प्रेस करने से बेल आइकन को ऑल में दूसरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरा दूसरा एक चैनल भी है जय गुरु एजुकेशन, उसको भी सर्च करने से दूसरा टॉपिक्स मिल जाएगा, बहुत सारे प्ले लिस्ट है, इसमें पढ़ के समझ जाओगे। इफ यू एनी डाउट प्लीज़ गिव योर कमेंट्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।